بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس جو مجھے سنتے ہیں یوٹیوب پہ 150 PM لانگ کورس کے اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ ابھی ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں. ابھی جن سامنے میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, یہ بچہ آیا ہوا ہے, ادھر سے آپ آئیں حافظ آباد سے حسنین. یہ دونوں بچے آئے ہیں کیڈٹ کالج گوٹکی سے. کیڈٹ کالج گوٹکی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور PMA کی تیاری کے لیے آئے ہیں. حالانکہ یہ بچے پڑھتے ہیں کس کلاس میں بیٹا آپ؟ میٹرک کے اسٹوڈنٹ. ابھی میٹرک کے پیپر انہوں نے دیے ہیں اور میٹرک کے پیپر دینے کے بعد کالج میں انہوں نے فری کیا تو یہ ادھر آ گئے ہیں. بجائے 2 مہینے گھر میں ٹائم ویسٹ کرنے کے ادھر آ کے پریپریشن کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب نے یہ سوچا اور اچھا سوچا ان کے پیرنٹس نے, تو اتنے دور سے یہ آئے. حیدرآباد سے ایک بچہ آیا اور ایک بچہ آیا ہے جیکب آباد سے, سکھر سے. تو کافی دور سے یہ دونوں اسٹوڈنٹس آئے ہیں. اور یہ بچہ بھی پنجاب سے آیا ہوا ہے حافظ آباد سے. 3 اسٹوڈنٹ. اب ان اسٹوڈنٹ سے میں وہ کویشچن پوچھنے لگا ہوں جو PMA 150 لانگ کورس میں آ چکے ہیں مختلف سینٹروں کے, چاہے راولپنڈی سینٹر ہے, چاہے ڈیرہ اسماعیل خان ہے, مظفر آباد ہے, کراچی ہے, لاہور ہے, ٹھیک ہے, پنو واکل سینٹر ہے, حیدرآباد سینٹر ہے, پشاور سینٹر ہے, گلگت بلتستان سینٹر ہے. مختلف سینٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سلیکشن سینٹر. تو ان سینٹروں کے جو ایکسپیرینس میرے پاس آئے ہیں, جو پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹ مجھے شیئر کیے ہیں اپنے ایکسپیرینس, انہی ایکسپیرینس کو میں سامنے رکھ کے ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا کتنا نالج ہے اور آیا یہ ٹیسٹ پاس کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں. اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ اسی چینل پہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی. ایک بچہ آیا تھا ہمارے پاس, اس کی تیاری کچھ بھی نہیں تھی, 2 دن کے لیے آیا تھا اور اس نے ٹیسٹ پاس کیے. اور دوسرے چینل میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کی آج صبح میں نے, سر عمران چینل پہ. چونکہ اس میں ایک جذبہ تھا لڑکے میں, تو میں نے دیکھا کہ جذبہ بھی ہے, جینیس بھی, اور پھر کریڈٹس بچے کو بھی جاتا ہے حسنین کو, کہ اس نے پوری رات اسے محنت کرائی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ کی بھی تیاری بھی ہو جاتی ہے اور اس کو بھی آپ نے پاس کروایا, ان شاء اللہ آپ بھی پاس ہو جاؤ گے. اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نے کیا کرنی ہے, کوپریشن کرنی ہے. کام کوپریشن کے ساتھ کیا جائے, کوآرڈینیشن کے ساتھ کیا جائے, اکوموڈیشن کے ساتھ کیا جائے, ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ کی کیا آ جاتی ہے, مدد آ جاتی ہے. اس طرح ہم نے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کوپریشن کرنی ہے. اور آرمی میں بھی یہی چیزیں آگے میٹر کرتی ہیں. تو پہلا کویشچن ہے آپ سے, واٹ از دی میننگ آف زکوٰۃ؟ ٹو کلینس. کلینس کا مطلب کیا؟ صفائی کرنا, پاکیزہ کر دینا, مال پاک صاف ہو جاتے ہیں. اور یہ سب سے ریکویسٹ ہے زکوٰۃ دیں. جو صاحب استعداد لوگ ہیں, اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے ہم سارے, تو اس ملک سے غربت ختم ہو جائے گی. اگر 1 کروڑ آپ کے پاس ہے تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے, 1 لاکھ ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے, 2.5% ہے. تو زکوٰۃ دینی چاہیے. تو زکوٰۃ کا بہت زیادہ ذکر ہے قرآن شریف میں, اور زکوٰۃ کے حوالے سے کویشچنز بہت آتے ہیں, بہت زیادہ کویشچنز آتے ہیں اس میں انیشیل جو ٹیسٹ آپ کا ہو رہے ہیں. ٹوٹل قرآن مجید فرقان حمید میں رکوع کتنے ہیں؟ رکوع 558. رکوع کتنے ہیں؟ آیات 6,666 ہیں. آپ آیات سمجھے تھے. رکوع کتنے ہیں؟ 558 ہیں. واٹ از دی سیکنڈ پلر آف اسلام؟ نماز. جس کے اشارہ کروں گا وہ بتائے گا, ٹھیک ہے. فرسٹ پلر آف اسلام کلمہ. سنائیں کلمہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹوٹل پلرز کتنے ہیں اسلام کے؟ 5. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارٹرڈ ان وچ غزوہ؟ حسنین. اور یہ کن کے بھائی تھے یہ بھی مجھے بتائیں. جی آپ بتائیں. غزوہ معطا کن کے بھائی تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, بڑے بھائی تھے. غزوہ معطا کب ہوئے؟ 629 AD میں. اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی جب شہید ہوئے تھے؟ 38-39 سال عمر تھی. شارٹیسٹ سورت کون سی ہے قرآن شریف کی؟ سورہ الکوثر. کتنی آیات ہیں, ورسز کتنی ہیں؟ 3. اسٹرینتھ آف مسلم ان غزوہ احد, کتنی تعداد ہی بچے غزوہ احد میں مسلمانوں کی؟ جی آپ بتائیں. 700. ہاؤ مینی مصارف زکوٰۃ؟ ٹوٹل کتنے مصارف زکوٰۃ ہیں حسنین جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سر وہ تو ویسے آتے ہیں 7 آتے ہیں, جس میں مطلب نہیں 7 نہیں 8 ہیں. کتنے؟ 8. تو اس دن جو سر آئے تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ کئی جگہ پہ 7 لکھا ہوا, کہیں پہ 8. نہیں 8 پہ آپ نے کریکٹ کرنا ہے. 8 ہے نا, 7 تو ہو نہیں سکتے کیونکہ اس پہ پوری حدیث ہے. فقراء مساکین عاملین زکوٰۃ, زکوٰۃ جن کو مؤلفۃ القلوب, یہ انہوں نے نکالا ہوگا کہ مؤلفۃ القلوب بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن شامل ہے اس میں, ٹھیک ہے. غلام کی آزادی کے لیے مقروض کو فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں, اور مسافروں کو زکوٰۃ دی. اور مسافر اگر امیر بھی اگر پیسے ختم ہو گئے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نیکسٹ آ گیا کویشچن جناب, آپ سے پوچھوں گا. کیا آپ کا نام ہے بچے؟
जमशेर। कौन सा हाउस है आपका? गोट की कट कॉलेज में। गोट की कट कॉलेज के बच्चे बहुत अटैच हैं ग्रुपों में मेरे साथ, और बड़े अच्छे लड़के हैं। कब बना है कट कॉलेज गोट की? इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें बच्चों को। 2005 में इसका इफ्तिताह ने मतलब इंटर की थी, फिर 2010 में फर्स्ट पेज इधर आई थी और 2015 में पास आउट हुई। और कट कॉलेज गोट की में कितने हाउस हैं? 5 हाउस हैं और एक जेड भुट्टो हाउस, इकबाल हाउस, जिना हाउस। आपका कौन सा हाउस है? हमारा जिना हाउस। जिना हाउस। और किस क्लास से ये कॉलेज शुरू होता है? ये 7th से। 7 से लेके कब तक है जी? कौन कौन से हाउस हैं? इकबाल हाउस, जिना हाउस, माथुर हाउस, बिटाई हाउस, जेड भुट्टो हाउस। तो बेसिकली यू बिलोंग टू विच एरिया? जिना हाउस। बेसिकली यू बिलोंग टू विच एरिया? जैकबाबाद। Jacobabad, but basically you belong to which area? नारोवाल। You are nowadays you are settled in Jacobabad, but you are basically belong to नारोवाल। Narwal. Can you speak Sindhi? यस। और आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें। कौन सा हाउस है कट कॉलेज गोटकी में? मेरा जिना हाउस है सर। जिना दोनों एक हाउस के बच्चे Yes, हैं? सही है। और ये बच्चा तो हसनैन जो है जैन का भाई है। यस सर। जैन साहब जो है हमारे स्टूडेंट थे मिलिट्री कॉलेज सुई में, आज का तुर्की में है। इनवाइट मुझे किया हुआ इसके भाई ने, तो ये जब सेलेक्ट होगा तो मैं जाऊंगा। अल्लाह करे कि ये सिलेक्ट हो जाए, फिर तुर्की हम विजिट करेंगे इंशाल्लाह, सैब्रस और तुर्की इंशाल्लाह विजिट करने में। नेक्स्ट आ गया, विच प्रॉफिट अलैहिस्सलाम प्रेड टू गॉड टू ग्रांट हिम अ किंगडम विच वुड बी अनलाइक एनी आफ्टर हिम। अगेन सर। विच प्रॉफिट अलैहिस्सलाम प्रेड टू गॉड टू ग्रांट हिम अ किंगडम विच वुड बी अनलाइक एनी आफ्टर हिम। ऐसी सल्तनत मुझे अदा कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ की पैगम्बर ने, कि जो पहले किसी को ना मिले और ना किसी को मिले। वो कौन से पैगम्बर थे? ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है जी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। मेरे बच्चों को याद है, देखो वीडियो देखिए ना सुबह। नेक्स्ट आगे देखिए, बहुत बड़ी सल्तनत थी, तख्त था, और इतना बड़ा तख्त है, तख्त सुलेमानी आपको पता है। 5 लाख कुर्सियाँ मौजूद थी, फरिश्ते भी थे, जिन्नात भी थे आपके मतलब, और जानवर भी थे सारे, मतलब उन पे आपकी हुकूमत थी, और सारे जानवरों की बोलियां समझते थे, सारे परिंदों की बोलियां समझते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और ऐसी बादशाहत किसी को नहीं अल्लाह ने अता की। तमाम जितनी अशरात हैं चिंटियों तक की ज़बान समझते थे, सुनते भी थे। और कौन थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे किनके थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। और दाऊद अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर अल्लाह ताला के गुजरे हैं जिनका मौजज़ा ये था कि लोहा आपके हाथ में नरम हो जाता था, ठीक है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब मिलता है जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, ठीक है। तो जिस तरह मैंने बताया कि तमाम इंसानों पे, जिन्नात पे, शयातीन पे, सब पे काबू था आपको। और हर तरह के जानवर आपके क्या थे? ओबीडियंट थे, फर्माबरदार थे। हवा को मुसख्खर कर दिया अल्लाह ताला ने आपके लिए, हवा पे भी आपका कमांड था। और पिघली हुई तांबे के चश्मा जारी कर दिए, ये भी आपका एक मौजज़ा है। कुरान मजीद में 16 मकामात पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, 16 मकामात पे। और अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह क़ुव्वत फैसला से नवाजा था, डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा थी आपके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम डॉटर मैरिड टू हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी शादी किन के साथ हुई? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी हसनैन बताओ। यस सर। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी किन से हुई? नबी पाक की बेटी जो थी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी बेटी की, उनकी जो शादी है वो किन से हुई थी? आस बिन अबुल आस इब्ने अल रबी। रबी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी किन से हुई थी? हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और हज़रत उम्मे कुलसूम, 2 मतलब नबी पाक की बेटियाँ, एक के बाद दीगरे। एक की जब डेथ हो गई, दूसरे के साथ फिर शादी आपने, इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कहा जाता है? ज़ुल नूरैन कहा जाता है, 2 नूरों वाले। विच हिजरी आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन। लास्ट सरमन कब दिया नबी पाक ने? आखिरी खुतबा में। किस हिजरी में? हिजरी बताए ना? यस, 10 हिजरी, 9 ज़िलहज 10। द टर्म जिहाद इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? किस ज़बान का लफ्ज़ है जिहाद? अरेबिक, जिसका मतलब क्या है? टू एफर्ट, टू स्ट्रगल, कोशिश करना। हाउ मेनी मुस्लिम्स वर इन बैटल ऑफ तबूक? आप बताएं, ये आसान है। तबूक में टोटल मुसलमानों की तादाद कितनी थी? गज़वे तबूक में
30,000 क्या हो गया, 100 तो नहीं रहे। नहीं डेट ऑफ गज़वे खंदक, 5 क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछूंगा, स्नैन से 5 इस बच्चे से पूछूंगा, 5 इस बच्चे से पूछूंगा जी। डेट ऑफ गज़वे खंदक 6। 5 हिजरी। अच्छा डेट मैं हिजरी वो सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। व्हेन बैटल ऑफ ओहद टुक प्लेस, तैयारी नहीं है बच्चे, पढ़ो अच्छा नहीं ये क्वेश्चन ये तो बहुत पुराने क्वेश्चन है। विच प्रॉफिट अलैहिस्सलाम हैड द टाइटल ऑफ इसराइल। चलो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इस छोटे बच्चे से, मैट्रिक वाले से। बस पूछो जी। हाउ मेनी मुस्लिम्स वर इन बैटल ऑफ तबूक। बैटल ऑफ 30,000 30,000। डेट ऑफ गज़वे खंदक, 623 डेट ऑफ गज़वे खंदक सैटरडे 23 मार्च हिजरी बताएं मुझे। 5 है 5 हिजरी। व्हेन बैटल ऑफ ओहद टुक प्लेस, बैटल ऑफ 10 to 20 रमजान 7 शवाल 3 हिजरी। विच प्रॉफिट इस्लाम हैड टाइटल ऑफ इजराइल। हजरत याकूब इब्न इसाक इब्न याकूब अलैहिस्सलाम, वो आगे फिर नस्ल चल रही है ना इधर आएंगे। जी। आगे नेक्स्ट, हाउ मेनी गज़वा आर फाउट, कितने गज़वे लड़े गए। 20। अभी आपका नंबर आ गया। ये बच्चे ये तो वीडियो पर बनेगी, सारे देखेंगे कैसी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। हु वाज लीडर ऑफ बैटल ऑफ बदर ऑफ मुस्लिम्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु और जितने भी गज़वा आ जाता है ना, गज़वा, तो वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लीडर थे। गज़वा में जो नबी पाक ने खुद शिरकत की होती है, ये कॉमन सेंस की बात है। गज़वा आ गया तो कॉमन सी बात है कि लीडर कौन होंगे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। काफरों के लीडर कौन थे इसमें, गज़वे बदर में काफरों का लीडर कौन था जो गज़वे में मारा गया था, गज़वे बदर में? अबू जहल। नेक्स्ट आ गया बदर नेम ऑफ हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनके 4 भाई थे, किसी एक का नाम बता दूं। हाँ, वलीद इब्न वलीद भी कह सकते हो, वलीद भी नाम जी। आशर बिन आशिम बिन वलीद, अमारा बिन वलीद, और वलीद इब्न वलीद और अब्दुल शम्स, ठीक है, गुड। हजरत इस्माइल इस्लाम इज द सन ऑफ, किन के बेटे थे हजरत इस्माइल इस्लाम? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। विच साहबी रिसाइटेड सूरत इन फ्रंट ऑफ नजाशी। नजाशी के दरबार में किस सहाबी ने सूरत की तिलावत की थी? सहाबी थे या याकूब अलैहिस्सलाम? वो तो पैगंबर थे। सोचो मैं क्या पूछ रहा हूँ, किस सहाबी ने सहाबी मैं पूछ रहा हूँ ना, पैगंबर तो नहीं पूछ रहा हूँ। तिलावत की थी आयत सूरत की। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, who was a companion of Prophet peace be upon him and an old brother of Imam Ali alayhi salam रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली के भाई थे। he recited a portion of सूरह मरियम। कौन सूरत, ये पूछ सकते हैं आपसे। सूरह मरियम का पोर्शन पढ़ा फ्रॉम वर्सेस 19 to 32, 19 से लेके 32 तक। फतेह मक्का वाज इन विच मंथ। मक्का कब फतह हुआ, किस हिजरी में, किस महीने में, सॉरी रमज़ान। और कौन सी हिजरी थी? 8 हिजरी। 8 हिजरी याद करो, अच्छा ये प्रिपरेशन करनी है आपने सही। Who was the grandfather of our holy prophet peace be upon him? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फर्स्ट गज़वा इन इस्लाम इज, पहला गज़वा बच्चे बताओ हसनैन, मैं तो आता होगा ना। गज़वे वेदान, उसके 2 नाम हैं, नोट्स भी ये है। गज़वे वेदान कब हुआ, किस हिजरी में? 2 हिजरी में। गज़वे बदर भी 2 में हुआ है, गज़वे वेदान भी 2 में हुआ है, 1 में नहीं हुआ। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक में नहीं हुआ गज़वे वेदान। गज़वे वेदान में 2 हिजरी में हुआ है, 12 रजब 2 हिजरी, अंग्रेज़ी तारीख 30 दिसंबर 623। वो अंग्रेज़ी में फिर चेंज हो जाता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाए। और वेदान क्या है, व्हाट इज़ वेदान? वेदान इज़ वैली। वेयर इज़ दिस वैली? बिटवीन मक्का एंड मदीना। उस वादी का नाम वेदान है। और उसके साथ दूसरा इलाका है, उसका नाम अबवा है। क्या इलाका है उसका नाम? अबवा। अबवा भी कहते हैं इस गज़वे को, गज़वे वेदान को गज़वे अबवा भी कहते हैं। ये सर किस एडी में हुआ था? जी एडी एडी मैंने 627 एडी,
30 दिसंबर 623 AD, ऐसी लिखें, सेंचुरी लिख लें, दोनों ठीक हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया, इन विच हिजरी गज़वे तबूक वाज फाउट। पहले पूछा ही मैंने, 9 हिजरी। तबूक क्या है, व्हाट इज तबूक, ये पूछ सकते हैं आपसे, इनिशियल के इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तबूक मदीना और शाम के दरमियान एक जगह का नाम है। किधर है ये? मदीना और शाम के दरमियान एक मकाम का नाम तबूक है। उम्रे में जाते हैं लोग, तबूक विजिट करते हैं जाके ना, जो मदीना से 14 मंजिल दूर है। बाज़ के कौल है कि तबूक एक किले का नाम है, बाज़ के कौल एक चश्मा था। मुमकिन है ये सब बातें दुरुस्त हों। अरब का एक ख़ानदान था, गिसानी ख़ानदान उसका नाम था, फैमिली, जो कैसरूम के ज़रिए असर मुल्क शाम पर हुकूमत करना चाहता था। चूँकि वो मसीही था, क्रिश्चियन था, इसलिए कैसरूम ने इसको अपना आलाकार बनाकर मदीना पर फ़ौज कशी का अज़म कर लिया। कैसरूम ने, रोम का जो कैसर था, रूमियों की इस्लाम दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इस्लाम के दुश्मन थे रूमी जो थे। मुल्क शाम के जो सौदागर रोगने जैतून बेचने के लिए मदीना आया करते थे, उन्होंने खबर पहुंचाई कि कैसरूम की हुकूमत ने मुल्क शाम में बहुत बड़ी फ़ौज जमा कर ली है। इस फ़ौज में, यानी कि उसकी जो फ़ौज थी, उस फ़ौज में रूमियों के अलावा नहम और जज़ाम और गिसान के तमाम अरब के लोग शामिल थे। इन खबरों का तमाम अरब में क्या हो गया? चर्चा हो गया। इसलिए हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने यह फ़ैसला किया कि अपनी फ़ौज को तैयार किया जाए उनका मुकाबला करने के लिए। जब खबर मिल गई कि फ़ौज तैयार कर रहे हैं, तो अपनी फ़ौज तैयार करने का हुक्म दिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना लश्कर था इसमें ग़ज़वा तबूक में? 30,000 का लश्कर। ये सर 30,000 सहाबा किराम थे, ठीक है। 30,000 का लश्कर लेके तबूक के लिए रवाना हुई है। तबूक के लिए 30,000 का लश्कर लेके, आखिरी ग़ज़वा था ये। और मदीना का नज़्म नस्क चलाने के लिए हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पीछे अपना खलीफा मुकर्रर किया। रूमियों के दिलों पर इस कदर हैबत छा गई इस लश्कर की वजह से कि वो जंग से हिम्मत हार बैठे और अपने घरों से वापस बाहर ना निकले। यानी कि इस तरफ रुख क्या करते, घर से बाहर ना निकले, डर गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में 20 दिन क़याम फरमाया। ये पूछा जा सकता है कि तबूक में कितने दिन क़याम फरमाया, तो उसका आंसर है 20 दिन क़याम फरमाया। और अतराफ़ व जवानिब में अफवाज इलाही का जलाल देखकर, ठीक है, एक हैबत तारी हो गई और इस्लाम का रोब जो है ये उनके दिलों पर बैठ गया, काफिरों के दिलों पर। और फिर 20 दिन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और यहीं पे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा भी नमूदार हुआ सामने आए लोगों के कि तबूक के मकाम पे एक चश्मा था। तो जब आप पहुँचे अपने जानवर और 30,000 का लश्कर लेके, सहाबा किराम का जानवर प्यासे थे, पानी पीना था उन्होंने, सहाबा किराम प्यासे थे, सख्त गर्मी थी। तो उस चश्मे में पानी बिल्कुल इतना आ रहा था जैसे एक हल्की सी रस्सी नहीं होती, या जूते का तस्मा जो है, रस्सी तो बहुत बड़ी बात है, जूते के तस्मे के बराबर पानी की धार थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अंदर से पानी ले आओ किसी बर्तन में, सहाबा किराम से। वो पानी पेश किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें क्या किया, उस पानी में मुंह धोया और कुल्ली फरमाई और फरमाया कि यही पानी जाके उस चश्मे में आप क्या कर दें, उंडेल दें। जो ही पानी उंडेलते गए तो जो जूते के तस्मे के बराबर जो था पानी की धार, वो बहुत बड़े धारे में बदल गई। इतना पानी पैदा हो गया, तमाम जानवरों ने और 30,000 के लश्कर ने खूब पानी पिया और पानी ख़त्म ना हुआ। यहाँ एक नबी पाक क्या नमूदार हुआ यहाँ पे, मौजज़ा। टोटल वाजिबात कितने बचे हसनैन नमाज में? वाजिबात आप बताएं। 14। फ़राइज़ कितने हैं? 13 फ़राइज़ हैं। विच पिलर ऑफ इस्लाम मोस्टली विद ज़कात इन कुरान? अभी ज़कात का जिक्र फिर आ गया, ठीक है। नमाज का जिक्र, ज़कात के साथ नमाज का जिक्र है। नेक्स्ट है, हु वाज द फादर ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। किबला चेंज इन विच हिजरी? 2 हिजरी में। ये कुछ क्वेश्चन
Harappa is on which river? Ravi. Which pass connects Pakistan and Afghanistan? Khyber Pass. Khyber Pass. Who was the chief of army staff in 1971 war? आ गया आगा मोहम्मद यखया खान. बस तीनों इकट्ठे बोलो, ठीक है, पता है क्या होते हैं ये. When Pakistan joined UNO? 30 September 1947. 13 September 1947. Who was the second prime minister of Pakistan? दूसरे सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन. Pakistan China border agreement 1963. 2 March 2 March 1963. When Quaid Azam joined Muslim League? 1913. 13. Quaid Azam की पैदाइश कब हुई है? 1876. 25 दिसंबर 1876. और वफात कब हुई है? 1948. 48 11 सितंबर. आप एक क्या थे? सियासतदान थे, पॉलिटिशियन थे, बैरिस्टर थे और पाकिस्तान के बानी हैं. यस सर. फादर ऑफ नेशन कहा जाता है आपको, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को. Who was the last Governor General of Pakistan? Major General retired सिकंदर मिर्जा. कितने गवर्नर जनरल पाकिस्तान गुजरे टोटल? 4. पहले कौन थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. दूसरे कौन थे? ख्वाजा नाज़मुद्दीन, अभी तो बताया. तीसरे गुलाम मोहम्मद और चौथे सिकंदर मिर्जा. How many soldiers guard निशान हैदर? 11. नाम बता आते हैं किसी बच्चे को? चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ, फिर हमारी वीडियो बहुत ही तवील ना हो जाए कहीं. नहीं, वजाहत करना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लें, इसलिए ज़रूरी होता है ये. सबसे पहले जिनको निशान हैदर मिला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है निशान हैदर, और सिविल अवार्ड सबसे बड़ा कौन सा? निशान पाकिस्तान है. तो पहला जो निशान हैदर जिसको मिला वो शख्सियत हैं कैप्टन राजा सरवर शहीद, जिनका ताल्लुक गुजर खान से है, और आपको शहादत का मरतबा मिला 27 जुलाई 1948 को. 48 में पाकिस्तान इंडिया की एक जंग हुई है, पहली जंग जो थी, और कश्मीर पे सारी जंगें कश्मीर पे हुई हैं. दूसरे जो थे मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, 1965 की जंग में शहीद हुए. तीसरे मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, 10 सितंबर 1965 में शहीद हुए, जो कि शबीर शरीफ के अंकल थे, भाई नहीं थे. शबीर शरीफ के क्या थे? मामू थे ये, और रहील शरीफ के मामू थे. ठीक है, दोनों भाई हैं. मैं शबीर शरीफ निशान हैदर और दूसरे ये रहील शरीफ, दोनों. अब शबीर शरीफ बड़े हैं, रहील शरीफ छोटे हैं, और इनके मामू थे ये राजा अजीज़ भट्टी, जिनको 1965 में निशान हैदर मिला, जिनका ताल्लुक गुजरात से है. ठीक है. पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद, बहुत छोटी उम्र में ये शहीद हो गए थे. 1 साल नौकरी भी नहीं हुई थी इनकी. 1971 में कमीशन लिया और 1971 ही में एक ही जंग में शहीद हुए हैं पायलट. और ये वाहिद निशान हैदर हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के. यही पूछते हैं आपसे क्वेश्चन कि PF के वाहिद निशान हैदर कौन हैं? तो एक ही थे ये, एक ही हैं अभी तक, पायलट अफसर राशिद मिनाज. बेसिकली आपका ताल्लुक कराची से था, 1951 में पैदा हुए थे कराची में. फिर आगे मेजर शबीर शरीफ शहीद, सितारे जुरत 2 मरतबा आपने हासिल किया, और 6 दिसंबर 1971 की जंग में शहीद हुई. इनकी बड़ी देखें ना, एक तो रिश्तेदार थे ये मेजर शबीर शरीफ, और ये सर 3 भाई थे? नहीं, ये 3 थे. 3 के 4 भाई हैं, एक कैप्टन भी था इनका बड़ा भाई ना. और सारे शहीद हैं ना, ये बस जनरल शरीफ के अलावा इनके पापा शहीद यही थे. इनके वालिद साहब जो थे मेजर थे, मेजर शरीफ. और मेजर शरीफ ने ये कहा था शबीर शरीफ को जब ये PMA में था कि तुम अगर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ले लोगे तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल लेके दूंगा, और आपने फिर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ले ली. और मैं ये बता रहा था कि इनकी और अजीज़ भट्टी की बड़ी मुमासलत बनती है लाइफ अगर पढ़े ना दोनों की, कि वो भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर था मेजर अजीज़ भट्टी, और ये भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर था. ठीक है, वो भी शहीद हैं, 1965 में शहीद हुए, ये भी शहीद हैं. ठीक है, उनकी पर जब हम पढ़ते हैं निशान हैदर दोनों को मिला, वो भी निशान हैदर, ये भी निशान हैदर, वो भी दलेर, ये भी दलेर. और फिर लाइफ भी मिलती है अगर आप उनको थोड़ा. फातह सबूना है किताब है, आप पढ़ लें. भाई शबीर शरीफ के सामने लाइब्रेरी है यहाँ पे पार्क में. ठीक है, उस लाइब्रेरी में अपना कार्ड बनाएं, फ्री बनाते हैं वो कार्ड. वहाँ जाके आप वहाँ लैपटॉप पढ़ें, E-टैब लाइब्रेरी है, तो वहाँ आप बैठ के इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट. वहाँ आप देखें, इनकी हिस्ट्री निकालें शबीर शरीफ की. फातह सबूना किताब पढ़िए तो वो लें. तो आप अगर बताना चाहते हैं मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी ये है, तो पूरी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं इनकी इस किताब में, फातह सबूना में, मेजर शबीर शरीफ की. और स्टार्टिंग बड़ी अच्छी है इस किताब की. अगर स्टार्ट पढ़े ना, उसके स्टार्ट में लिखने वाले ने लिखा कि आज फिर उसके कपड़ों पे खून के धब्बे थे. माँ ने पूछा कि क्या हो गया, तो उसने आगे से कहा बस छोटा सा क्या हो गया, जंग हो गई है. अपने सीनियर के से लड़ाई हो जाती थी इनकी,
اسکول ٹھیک ہے اسکول میں. اور وہ پھر لیکن ابھی جو تھی جنگ اب شہید ہوئے لیکن وہ ابھی اس کی ماں پتہ ہے تھوڑا پڑھیں گے جذباتی منظر ہے یس سر. کافی جذبات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو وہ کتاب ضرور پڑھیں جتنے بھی سنتے ہیں یوٹیوب پہ مجھے تو فاتح سبونہ بک لے لیں پڑھنی چاہیے. نیکسٹ آ گیا سوار محمد حسین جنجوعہ شہید 10 دسمبر 1971 کی جنگ. میجر محمد اکرم عالمگیرین ہے ملٹری کا جرم کے پڑے ہوئی ہیں 5 دسمبر 1971 میں شہید ہوئی ہیں. لاس نائک محمد محفوظ شہید 17 دسمبر 1971 اور یہ پنڈ مالکا ہیں ملکاں رالپنڈی وہاں کے رہنے والے ہیں. ان کے بانجے میرے دوست ہیں اور بڑے اچھے ماشاء نیک شخصیت ہیں وہ نعت خان ہیں بڑے اچھی نعت پڑھتے ہیں. کیپٹن کرنل شیر خان شہید کارگل کے معاذ جنگ میں شہید ہوئے 7 جولائی 1999 میں سوابی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کی قبر بھی میں گیا ہوں. حوالدار لالک جان شہید ٹھیک ہے یہ بھی کارگل میں 7 جولائی 1999. میں ویسے بھی لیکچر ہی دیا تھا میں لالک جان کے بارے میں تو اسی ٹائم ایک بچے نے میسج کیا نا ادھر کا رہنے والا تھا جی بی کا کیونکہ بیسیکلی ان کا تعلق جی بی سے ہے گلگت بلتستان سے. تو اس بچے نے جب بتایا ایریا تو میں نے کہا اس ایریے میں تو یہ رہتے ہیں ایک نشان ادر بھی ہے تو کہتے سر وہ میرے ماموں ہیں. اس بچے نے کیا کہا میرے ماموں ہیں. نیکسٹ آ گیا نائک سیف علی جنجوعہ شہید ٹھیک ہے اور یہ 11 نمبر پہ ہیں اور یہ شہید ہوئے ہیں 10 اکتوبر 1948 میں شہید ہوئی ہیں ٹھیک ہے. پہلے نکیال کوٹلی آزاد کشمیر سے تعلق تھا آپ کا اور 14 مارچ 1949 کو ان کو ہلال کشمیر دیا گیا تھا. بعد میں حکومت پاکستان نے ہلال کشمیر کو نشان حیدر کے برابر قرار دے دیا ٹھیک ہے. پہلے 10 تھے پھر یہ جو نشان حیدر ہو گیا پھر بعد میں یہ تو 11 بن گیا. اس طرح یہ کنفیوز نہیں ہونا ہم. نیکسٹ آ گیا بچے آپ کا سالٹ مائن ان وچ ریجن نارتھ پنجاب. ادھر پوچھے جائیں گے آپشن میں نارتھ ہے ساؤتھ ہے کون سا پنجاب کون سا ہے نارتھ شمالی. واٹ از ڈیٹ آف نہرو رپورٹ جی آپ 1928 15 اگست. سندھ سیپریٹ فرام بمبئی ان وچ ایئر 1936 کریکٹ ہے. اچھا 35 نہیں ہے اس کو صحیح کر لیں تو 36 کو میں نے سرچ کیا. یہ Who wrote the national anthem? حفیظ جلندری. Hottest place in Pakistan جیکب آباد اور سٹی آیا تو کون سا ہوگا ملتان ہوگا. اولڈیسٹ سٹی سوری وہ اولڈیسٹ ہے جو میں نے نوٹس میں نہیں لیکن یہ پلیس آ جائے تو پھر آپ نے لکھنا ہے جیکب آباد. آپ جیکب آباد سے آئے ہوں آپ آئے ہو جیکب آباد سے. فرحان علی قادری ہے نا وہاں کا نعت خان جو بچہ ہے وہ بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے. فرحان علی قادری بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے. اس نے مجھے بلایا تھا کہ سر آپ آئیں پھر مجھے گاڑی پہ ڈرائیو کر کے لے گیا ادھر شکارپور لے گیا تھا. ابھی تو بڑا ہو گیا وہ اس ٹائم 2011 میں گیا تھا سکر تو اس ٹائم وہ پڑھتا تھا 10th کلاس میں پڑھتا تھا. وین واز آبجیکٹو ریزولوشن پاسڈ 7 مارچ 1949. وین ڈیڈ گاندھی کالڈ کرپس مشن 11 مارچ 1942. تو یہ تھے جناب برطانوی وزیر اعظم چرچل نے اس کو بھیجا تھا کرپس کو سر اسٹیفرڈ کرپس کو ایک مشن پر ہندوستان بھیجا تھا. یہ مشن کرپس مشن کے نام سے مشہور ہے. وین واز دی فرسٹ OIC کانفرنس ہیلڈ 22-25 ٹھیک ہے. بس بچے کافی ہیں آپ کو آتے ہیں تقریباً اس کو یاد کریں اس کو صحیح اچھی طریقے سے پریپیئر کریں جو نوٹس ہیں تاکہ وہ نہ بنے مسئلہ. آپ بچے ایسے کرو تصویریں لو تو ساری جیسے ادھر بیٹھ جاؤ. ان دونوں سے ذرا میں ڈائس پہ تھوڑا سا مزید ہم انٹروڈکشن کروائیں گے. اوکے بیٹا انٹروڈیوس یور سیلف. My name is Mohd Ahmad. I'm from Jacobabad, Sindh, Pakistan. I study in Gate College, Ghodki. I am here to join Pakistan Army because I am inspired from Pakistan Army and I want to join. I am here for Imran's coaching academy in Rawalpindi. Sir is good teacher. Why you want to join Pakistan Army? Because I am inspired from the motivations and the respect of Pakistan Army Good. soldiers. You are in which class? I am in for metric class. I have passed metric and I am now first year class. اوکے گڈ. والد صاحب کے بارے میں تھوڑا بتائیں. My father your is father. exactly from Alipur Saida Sharif, a village in Narwal district, and now he is in
Karachi, PSO, Personal Staff Officer of Additional IG, Karachi. And he is ranked ISI, ASI. ओके ओके नेक्स्ट आप आ जाओ बेटा, दूसरा बच्चा. Thank you. Assalamu alaikum, sir. My name is Cadet Jamshid Ali. I am from Sakkar. I am studying Cadet College Ghotki. बेसिकली यू बिलोंग टू सक्कर. Yes, sir. ओके I am studying Cadet College Ghotki past. Now I am in first year class. I am coming here for preparation 150 PM course and Cadet College Ghotki. This college, Cadet College Ghotki में 5 हाउस है, जिना हाउस, इकबाल हाउस, जेडी हाउस और बिटाई हाउस, अथिल हाउस. अच्छा सर मैं 7th में आया था. 7th क्लास में आए थे. यस सर. शुरू से जिना हाउस में था. शुरू से आया था, फिर मज़ा नहीं आ रहा था. फिर अभी 4 साल हो गया भाई, बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह. अभी सर एडजस्ट हो गए ना वहाँ पे. यस सर. शुरू में बच्चे आते हैं कैडेट कॉलेज में एडजस्ट नहीं होते, यस सर. बाद में हफ्ते महीने के बाद एडजस्ट हो जाते हैं. आते हैं फिर भी रो रहे होते हैं पेरेंट्स की वजह से, जाते हैं फिर भी रो रहे होते हैं टीचर्स की वजह से. Yes, sir. तो ये इतना फ़र्क है. मतलब ऐसा अमेरिका जेल में मैंने टाइम काफ़ी अरसा गुजारा है. यस सर. तो शुरू में उदास होते हैं, बाद में जब जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा उदास होते हैं कॉलेज को छोड़ते हुए. बड़ा अच्छा, अल्लाह करे आपका फ्यूचर बने. इंशाल्लाह. और आप इधर आए हो, छुट्टी आपको मिली है मैट्रिक के बाद पढ़ने के लिए. यस सर. आपके पेरेंट्स ने यही सोचा है कि बजाय टाइम ज़ाया करें इधर आके तैयारी करें. तो 2 दिन गुजारे हैं अभी आपने, तो कैसा आपने 2 टाइम कुछ सीखा है आपने? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है. पहले एमसीक्यू नहीं आते थे, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं सर. अभी तो पढ़ोगे ना, अभी 2 दिन में क्या अभी आपने सीखा होगा. अभी तो इंशाल्लाह हफ्ता गुजरेगा, महीने के बाद अपने चेंज देखेंगे इंशाल्लाह. यहाँ पे इंशाल्लाह सर. एक लाइन पे मैं लगा दूंगा, आपने उस लाइन पे चलना है. इंशाल्लाह. और आपके जो टेस्ट है इनिशियल वाला, अभी से तैयारी कर रहे हो तो आपको तो ऐसे 10 मिनट में टेस्ट पास होना चाहिए आपको. इंशाल्लाह सर. दोनों बच्चे हैं, फर्स्ट के बाद फिर आ जाना और 12वीं के बाद फिर आ जाना. ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह. ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.